Diversity in the living world. Diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. अपने चारों ओर आप देखिए बहुत सारी वेराइटीज़ आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की देखते हैं, जिस तरीके से प्लांट है, एनिमल है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, खूब सारे. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. अपने चारों ओर ये ऑर्गेनिज्म अपनी नग्न आँखों से देख सकते हो क्या? If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. तो देखिए इनकी वैरायटी भी है, इन ऑर्गेनिजम्स की इंक्रीज होते हुए आप देखते हैं. और obviously if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. A number of species that are known and described range between 1.78 to 1.8 millions. The refers to biodiversity or the number and types of organisms present on the earth. तो मतलब बायोडाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलती है ना, जैव विविधताएं देखने के लिए मिलती हैं क्या? Remember here that as we explore the new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified at stage earlier. There are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. तो देखना अब नोमेनक्लेचर के हिसाब से आप देखते हैं क्या होता है. जैव विविधताएं मिलती हैं. Standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. The process is called nomenclature. देखिए nomenclature. फिर देखिए आप इनको आइडेंटिफाई करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन में आता है कि आपने बता डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू. दिस इज आइडेंटिफिकेशन. एनिमल टेक्सोनोमिस्ट. देखिए आप उनको पता है इन्वॉल्व क्या इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं. देखिए जनरेटिंग यहाँ पे बाई नॉमियल नोमेनक्लेचर भी दिया गया है. तो देखते हैं कैसे दिया गया है. नेक्स्ट यहाँ जो क्लासिफिकेशन में इनको क्लासिफाइड भी किया गया है. तो देखिए वैसे ही ये टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ कैसे स्पेसिफिक नेम दिया. यहाँ पे मैं बताती हूँ दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीइंग practiced by biologists all over the world. The naming system using a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific names of a mango is written as Mangofera indica. Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangofera represents the genus, while indica is a particular species or a specific epithet. Other universal rules of nomenclature are as follows. देखना यहाँ पे मैंगोफेरा इंडिका आम का देखिए यहाँ पे बॉटनिकल नेम बताया गया. और देखिए वैसे ही होमो सेपियंस अभी ऊपर ने देखा था कि ह्यूमन बॉडी का होता है, ह्यूमन बीइंग का लिया आता है. तो ये जनरली बेस में ये
दिए जाते हैं तो ये टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ही मिल रहे हैं। तो देखिए टैक्सोनॉमी अपन को पता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ही आता है। इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर आती है, सेल की स्ट्रक्चर आती है, डेवलपमेंट आता है, प्रोसेस इकोलॉजी की इन्फॉर्मेशन आती है, सारी की सारी किस्में आती है टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ही आते हैं। तो देखिए सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी के लिए अपन को इनकी ज़रूरत होती है। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज दी गई हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर स्पीसीज आती है, जीन्स आता है। ये देखो ये थोड़ी सी जानकारी आपको नीचे दी गई है ना। देखो क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स of steps in which each step represents a rank or category. Since the category is a part of a overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category referred to as a unit classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon. तो उस कंडीशन में देखिए टैक्सोनॉमी की कैटेगरी बताई गई हैं तो वो क्लासिफाइड कर रहे थे, उनको रिप्रेजेंट देखो कैसे करेंगे। टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी illustrated by an example. Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of giant legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified then and thus we were given a rank of category. Can you name other such group of organisms? तो बता सकते हैं कहाँ से हैं ग्रुप में। तो रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, उनकी कैटेगरी भी प्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी फॉर द डिनोटेड रैंक, each rank or a taxon in fact represents a unit of classification. These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all non-organisms have led to the development of a common categories such as किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज। ये देखना मैन ये टैक्सोनॉमी की ब्रांच में ये ऑर्गेनिजम्स को इनके डेवलपमेंट के लिए कॉमन ये कैटेगरीज दी गई हैं इनके, जैसे किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स includes those in the plant and animal kingdom have species as their last category. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual of group organisms. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organisms as well as of other kinds of organisms. Species, अब देखो species. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. कि टैक्सोनॉमी स्टडी के अंतर्गत ग्रुप के इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिजम्स के साथ में जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ रखता है स्पीसीज़ में वो रखे जाते हैं। ऑन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो देखिए उनका अगर देखा जाए स्पीसीज़ में तो एक से दूसरे में क्लोजली तरीके से रिलेशन रखते हो। Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum. भाई Mangifera indica आम का बॉटनिकल नेम है Solanum tuberosum, potato, Panthera leo मतलब लोयन का। All the three names indica, tuberosum and leo represent the specific species while the first words Mangifera, Solanum, Panthera and genera.
रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल टेक्सोन और एक कैटेगरी। तो देखिए ये कैटेगरी को शो कर रहे हैं, फर्स्ट नेम और जो सेकंड नेम है वो स्पीसीज को शो कर रहा है। ईच जीन्स मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक विलेज थाइस रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। लेकिन ये स्पीसीज देखिए स्पेसिफिक तरीके से भी ये क्या रखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटीज। फॉर एग्जांपल पेंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक epithet called trigris and solanum includes species like nigrum मतलब बैंगन के जैसा में एंड मेलोंजिना। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज sapiens which is grouped in genus Homo। तो द साइंटिफिक नेम thus for human being is written as Homo sapiens। तो ये स्पीसीज है, तो देखिए स्पीसीज से पता चल जाता है, जैसे होमो सेपियंस है तो होमो उसकी क्या है, स्पीसीज है, ये बताना है। ऐसे सोलोनम टुब्रोसम है तो सोलोनम तो क्या हुआ, तो स्पीसीज हुई, ऐसे बताना है, ठीक है। और जीन्स होती है, जीन्स comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species to other genera। Other genera, we can say that genera are a range of closely related species. For example, potato, tomato or brinjal are three different species but all belong to the genus Solanum लाइन का क्या बोलते हैं, पेंथेरा लियोपार्ड को पेंथेरा प्रोड्यूस एंड टाइगर को पेंथेरा ट्राइगिस। देखो अब पेंथेरा स्पीसीज हो गई ना, और डिफरेंट स्पीसीज के नाम दे रहे हैं हम, जीन्स में आ जाते हैं। जीन्स तो हो गए ना, ये साथ साथ में दे रखे हैं। सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीन्स पेंथेरा। इनका जीन तो पेंथेरा ही है और स्पीसीज इनके हो गई अलग अलग, लियो है, ट्राइग्रिस है। द जीन्स differs from another genus flies which includes cat। नेक्स्ट है फैमिली। देखो द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस number of similarities as compared to genes and species। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। Among plant, for example, three different genera Solanum, Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae। Among animals, for example, genus Panthera comparison lion, tiger, leopard is put along with genus। as in the cats होती है ना, cats, तो in the family Faraday। Similarly, if you observe the features of a cat and dog, you will find some similarities and some differences as well। They are separated into two different families, D and Anidae respectively। Order you have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters। Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the arrangement ऑफ करेक्टर्स। तो देखिए अब ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। स्पीसीज तो देखिए पहले इसको पता चलता है कि वेराइटी इसके अलग अलग हो सकते हैं हम, है ना। जीन्स सबकी एक जीन्स अलग होती है, स्पीसीज अलग अलग हो सकती हैं, उसमें एक कैटेगरी रखी जाती है। फिर वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो फैमिली उनकी अलग है, जैसे कैट के अलग होते हैं, डॉग के अलग होते हैं वैसे। नेक्स्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर को देखना आप कैसे। कैटेगराइज लाइक स्पीसीज, जीन्स एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर। उनके सिमिलर नंबर के करेक्टर के बेस के आधार पर डिवाइड किया गया है। जनरली
Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. Plant families, the Convolvulus solanaceae are included in the order Polynomials, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora includes families like Flidae and देखिए इनका ऑर्डर अलग होता है. फिर क्लास डिवाइड भी होते हैं. द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर. फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रीमा कंपेराइज मंकी है, गोरिल्ला है, गिब्बन है, इज प्लस्ड इन क्लास मैमेलिया. भाई मैमेलियन क्लास के अंदर आती हैं सारी की सारी, जैसे मंकी है, गोरिल्ला है, गिब्बन, ये सारी एक में आते हैं. विद ऑर्डर है कार्निवोरा, दैट इंक्लूड्स एनिमल लाइक टाइगर है, कैट है एंड डॉग. ये ऑर्डर एक में आते हैं. क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो. फिर आता है फाइलम. क्लासेस comprise animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called a phylum. All these based on the common features like presence of notochord and a dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. Next आता है kingdom. All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category. Category called kingdom Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct. The comprise all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as a animal and a plant kingdom. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order, starting with species in figure 1.1. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say, for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. Lower the taxa, more the characteristics that members within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of the determining the relationship to other taxa. देखना आप कैसे टेबुलेट में देखो. मैन होमो सैपियंस, बायोलॉजिकल नेम तो उसका क्या है? होमो सैपियंस. उसके जीन्स क्या हुई? होमो. फैमिली क्या है? होमिनिडी. ऑर्डर क्या है? प्रीमा. और क्लास क्या है? मैमेलिया. और फाइलम डिवीजन क्या है? कोर्डेटा. तो ये था कि ये टॉक्सोनोमिक जो करेक्टर थे ये ऑर्गेनिजम्स के साथ में स्टडी करनी होती है. तो ये इतनी देर का सार ये था ये इन टेबल में. ये हाउस फ्लाई है, देखो मुस्का डोमेस्टिका. मुस्का डोमेस्टिका बायोलॉजिकल नेम हो गया इसको मुस्का डोमेस्टिका. जीन्स इसकी मुस्का. फिर फैमिली मुस्केडिसी, मुस्केडी. फिर ऑर्डर इसका डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या है? डायप्टेरा. फिर क्लास इंसेक्टा के अंदर आ जाता है. और फाइलम इसमें आर्थ्रोपोडा. डिवीजन बोलते हैं आर्थ्रोपोडा. फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा हो गया. मैंगो फिर इंडिका है ना. जीन्स मैंगी फिर
नेक्स्ट देखना, एनाकार्डियंस, ऑर्डर सपियंडेल्स, जैसे क्लास डाइकोटिलीडोन है, और ये फाइलम या डिवीजन आएगा एंजियोस्पर्म में। आई हैड नेक्स्ट वेट ट्रेटिकम एस्टाइवम, जीन्स होगी ट्रेटिकम, फैमिली होगी पोएसी, ऑर्डर होगा पोएल्स, फिर क्लास है मोनोकोटाइलिडोन, और फाइलम या डिवीजन बताएंगे एंजियोस्पर्म। ये पूरी शारों की बात यही थी कि इनकी टैक्सोनॉमी की ये कैटेगरीज होती है, तो ये ध्यान में रखनी। कैटेगरीज कौन कौन से, तो जीन्स होते हैं, फैमिली होते हैं, ऑर्डर होता है, क्लास होता है, फाइलम होते हैं, और बायोलॉजिकल नेम अलग से दिए जाते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स दिए जाते हैं, ये देखो हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स में म्यूजियम है ना, जूलॉजिकल पार्क है, की वर्ड्स हैं, ये समरी है। देखना ओनली कल करेंगे अपनी ये क्वेश्चन आंसर। तो देखिए इससे देखिए कि दो पहले स्पीसीज है। टैक्सोनॉमी की कैटेगरी सॉर्टिंग के लिए अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है ना। स्पीसीज, जीन्स, फैमिली, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, फिर बाद में किंगडम बताया जाता है कि इस किंगडम का ये एनिमल है ये, क्योंकि इसकी स्टडी अपन आगे आप पूरी फुल चैप्टर में करेंगे, क्योंकि नाम आएगा तब आपको ध्यान होना चाहिए कि जीन्स क्या होती है, स्पीसीज़ क्या होती है। ये फुल चैप्टर था आपका बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, और क्वेश्चन आंसर करा देंगे आपको कल। ये बात है। तो ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आया उसकी स्टडी बताई थी, उसमें देखिए कैसे आया था वो होता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखनी है, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये बातें आप पूरी ध्यान में रखनी है। स्पीसीज़ है, जीन्स है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास, फाइलम, किंगडम। फिर आपकी ये टेबल है वो अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर अपने ये क्वेश्चन करेंगे। ये देखो वाई आर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाइड क्यों किया गया था। फिर क्लासिफिकेशन देखिए, चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, तो द डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। तो या फिर हम से बता सकते हैं कैसे कैसे करना है। महंगे फ्रेंडली का है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा होगा। फिर ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाना है। नेक्स्ट है तो ये फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जिनसे अंडरस्टैंड करवाने हैं आपको, सो में कुछ नहीं करवाना, ओके।